Very good morning, everyone. Today we are going to start our session number 6, and that is performing basic file operation. In this chapter, we are going to cover certain topics, and they are: what is Window Explorer, define file and folder, how to view file and folder, how to move or copy a file or folder, how to rename a file, how to delete a file or folder, how to search a file or folder, and at last, how to sort files. So let us begin while defining what is Window Explorer. Window Explorer is basically an application and it provides us detailed information about any file, any folder or drive. Even you can use it to see how your file is organized. While using Window Explorer, you can do many functions like if you want to copy any file, you want to rename any file, you want to move any file, or you want to search any file. You can do all these functions while using this Window Explorer. Now, for performing all these functions, what we'll have to do? We'll have to open Window Explorer. There are two steps to open Window Explorer. You people know there is a start button where? On the taskbar. And taskbar is where? At the bottom of the screen. Okay, so first step, what we are going to do, we'll have to click on the start button. After clicking the start button, we'll go to all program. Then accessories, and at last there on the accessories we'll get Window Explorer. Or we can click on the start button and then select computer option from the right pane. By this way we can open Window Explorer and do whatever the functions we want to perform in our computer. What we are doing? We are performing some functions like copying, moving, renaming and searching of what? Files and folders. So before starting learning how to copy, move, rename or search, we should learn what is a file and what is a folder. So let us start discussing what is a file. File. Information on a computer is basically stored in the form of files. फाइल्स में भी इंक्लूड एनीथिंग, उसमें कुछ भी हो सकता है. फाइल में आपके पिक्चर्स हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं, या कोई सॉन्ग जो आपने अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है वो भी किस फॉर्म में सेव हो रहा है? फाइल. इट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द फिजिकल फाइल. जैसे हम आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, व्हाट यूल पीपल डू, यूल ब्रिंग अ फाइल. आप शीट्स लाते हैं, उस पर प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसको एक प्रॉपर फाइलिंग करते हैं. इन द सेम मैनर अगर आप कोई कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं? फाइल के फॉर्म में. सो इट इज़ सिमिलर टू द फिजिकल फाइल दैट यू कैन सी फॉर स्टोरिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. Computer represents files with icons. I told you earlier also what are icon? Graphical symbols that we see on the desktop, that is icon. By looking at the file icon, we can immediately tell what kind of file it is. For example, आपने वर्ड पे वर्क किया, आपने उस वर्क को करने के बाद सेव करा, वो सेव हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे. और आप कैसे उसको मतलब एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप की फ़ाइल है, कि वो वर्ड की, कैसे पता चलेगा? बाय द सिंबल. वर्ड का सिंबल आ जाएगा उसके ऊपर. उस पर्टिकुलर सिंबल से आप ये देख सकते हैं कि ये फ़ाइल जो है मेरी कौन सी है? वर्ड की फ़ाइल. Now, what is a folder? Folder is like a container in which you can store similar types of files. It helps in arranging the files into organized group, which make it easy for the user to locate any particular file. For example, जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया हिंदी का, फिर मैंने दिया इंग्लिश का, फिर मैंने दिया मैथ्स का, फिर मैंने दिया साइंस का, एंड देन एसएसटी एंड लास्ट कंप्यूटर. व्हाट यू पीपल डू? आप हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग फ़ाइल बनाएंगे. वो फ़ाइल बनाने के बाद आप एक कंटेनर में एक प्लेस पे जहाँ पे वो सारी फाइल स्टोर करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस को या उस पर्टिकुलर कंटेनर को हम क्या कहेंगे? फोल्डर. सो वी कॉल इट एज व्हाट? फोल्डर. सो फाइल इज़ व्हाट? File is a single document. And if we'll talk about folder, folder is a group of documents. Now, our next topic is how to view
file and folder. Window provides many ways to arrange and identify your files while you are viewing them. The information can be viewed in different modes by clicking the drop down arrow on More option located at the toolbar. Now, here are some steps given below according to which you can arrange your files and folders. We can view files in different ways, and they are extra large and large icon, medium icon, small icon, list, details, tiles, and content. Now let us discuss one by one. If we'll talk about extra large and large icon, they basically display very large icon of the file or the folder. These two can be very useful while working with images and video files. बेसिकली हम एक्स्ट्रा लार्ज आइकन तब करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर इमेजेस देखना चाह रहे हैं या वीडियो फाइल्स. मीडियम आइकन्स, it display file and folder as medium size icon and it giving you a better idea of the file content. मीडियम आइकन आपको हेल्प करता है कि उस पर्टिकुलर फाइल में क्या कंटेंट है उसको व्यू करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉल आइकन. Small icon display your files and folder as small icon without a preview of its content. File name is displayed next to the icon. That means पहले आपका icon दिखेगा और उसके साथ में उस particular file का name दिखेगा. And if we'll talk about list view display the content as a list of files and folder. ये हमें जितनी भी files और folders है उसके name की proper list provide करता है by small icon. ये व्यू हमें कैसे यूज़फुल करता है. इफ़ योर फोल्डर कंटेन, आपके एक पर्टिकुलर फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं और आपको उनको स्कैन करना है. कैसे? फाइल नेम के अकॉर्डिंगली. तो आप सॉर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल और फोल्डर्स इस व्यू में. कौन से व्यू में? लिस्ट व्यू में. नाउ द डिटेल व्यू. डिटेल व्यू प्रोवाइड करता है हमें प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन. किसके बारे में? एक पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर के बारे में. इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? उस पर्टिकुलर फाइल फोल्डर का नेम, वो किस टाइप की फ़ाइल है, उसका क्या साइज़ है और उसको कब मॉडिफाई किया गया है. एंड इफ़ विल टॉक अबाउट टाइल्स, ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा? ये हमें अपने सारे फाइल्स और फोल्डर एक मीडियम साइज़ आइकन में दिखाएगा. ये हमें और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइल की, जैसे कि साइज़ एंड टाइप. लास्ट इज़ योर कंटेंट. कंटेंट डिस्प्ले करता है हमें क्या? हर एक फाइल और फोल्डर को सेपरेट रो में, उसके साथ वो उसकी प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है. नाउ वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ फाइल. ओके, टू मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट अ फाइल इज़ बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मतलब कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके उस पर कुछ भी वर्क करके जब हम उसे सेव करेंगे तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी? फाइल में. हमें क्या करना है? अगर हम वर्ड पे कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट. जब हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एनीथिंग, अ ब्लैंक पेज विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू. देन next step is what? You'll start tapping on that blank page. After completing your that particular typing, what you will do? You will save your file, and you can save your file by clicking on the file tab. फाइल टैब में जाके आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल को एक नेम देंगे. जब आप अपनी फ़ाइल को नेम देंगे और लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक फ़ाइल में. एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे? आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे. जब आप राइट क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आएगा. उस पॉपअप मेन्यू को आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं. उसमें आपके पास एक ऑप्शन आएगा, दैट इज़ न्यू ऑप्शन. जब आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सब ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे. सब ऑप्शंस में से आपको क्या सेलेक्ट करना है? फोल्डर. जैसे ही आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं आपके डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर अपीयर हो जाएगा. एंड व्हाट यू विल हैव टू डू? यू विल हैव टू गिव अ नेम टू योर फोल्डर. सो you will have to click on that particular folder and start typing the name that you want to give. After that you will have to press enter key.
जैसे कि आप अपने फ़ोल्डर को कोई नेम प्रोवाइड कर चुके हैं। नाउ व्हाट यू वांट टू रीनेम अ फ़ोल्डर। दैट मीन्स कि पहले आपने एक फ़ोल्डर का नेम दिया क्लास 9th और क्लास 10th ए। ओके, नाउ यू वांट टू चेंज दैट नेम विद अ स्कूल। आपको क्लास की जगह क्या लिखना है, स्कूल का नाम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एनी रीनेमिंग मीन्स चेंजिंग द एग्जिस्टिंग नेम। मतलब रीनेमिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक फ़ाइल को ऑलरेडी नेम दे रखा है और अब आप उसको कोई और नेम देना चाह रहे हैं। अगर आपको किसी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर को रीनेम करना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर फ़ाइल और फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर सेलेक्टिंग इट यू विल हैव टू प्रेस राइट क्लिक। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब आप फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक शॉर्टकट अपीयर होता है। इन द सेम मैनर, अगर आप कोई भी चीज़ को रीनेम कर रहे हैं और राइट क्लिक कर रहे हैं तब भी आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा। वहाँ से आप रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल स्टार्ट टाइपिंग द नेम स्कूल, क्योंकि पहले आपके पास क्या था, क्लास, और आप क्लास से क्या चेंज करना चाह रहे हैं, स्कूल। Our another topic is moving or copying a file or folder. मूविंग और कॉपिंग में डिफरेंस होता है। मूविंग मतलब कि एक लोकेशन से उठा के हमने दूसरी लोकेशन में एक पर्टिकुलर कंटेंट को प्लेस कर दिया। अगर हम कॉपिंग की बात करें, कॉपिंग क्या करता है, उसकी 2 कॉपीज़ बना देता है। दैट मीन्स जिस लोकेशन में वो है वहाँ तो अवेलेबल होगा, साथ ही साथ नई लोकेशन में भी वो अवेलेबल होगा। सो मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। दैट मीन्स जहाँ पे वो ओरिजिनली हमने पहले सेव करा था टू अनदर लोकेशन जहाँ हम करना चाह रहे हैं, दैट इज़ डेस्टिनेशन। वेयर इज कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी। हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल की अगर डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो हम उसे कॉपी करेंगे। नाउ द स्टेप्स टू मूव और कॉपी अ फाइल और फोल्डर। If we want to move a file or copy a file or folder, what we'll have to do? We will have to double click where? On the computer icon. हमें कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा और ये कंप्यूटर आइकन आपको कहाँ मिलेगा? डेस्कटॉप पे। नाउ डबल क्लिक ऑन द ड्राइव आइकन। जैसे हम माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने ड्राइव्स आ जाती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। उस पर्टिकुलर ड्राइव आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हमारे उस ड्राइव में हैं वो हमें व्यू हो जाएंगी। उसके बाद वील हैव टू सेलेक्ट फाइल और फोल्डर दैट वी हैव टू मूव और कॉपी। आफ्टर दैट सेलेक्शन के बाद हम उस पर्टिकुलर फाइल पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कॉपी या मूव। अगर हमें कॉपी करना है, अगर हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो हम कॉपी लेंगे। अगर हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचाना है तो हम क्या लेंगे, मूव। एक पॉपअप मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा जहां से आप कॉपी या मूव ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ गो टू अनदर लोकेशन जहां पे आपको वो फाइल को कॉपी या मूव करना है। वहाँ लोकेशन पे जाके अगेन हम राइट क्लिक करेंगे और सेम अगर हमने कॉपी सेलेक्ट करा है तो वहाँ जाके पेस्ट ले लेंगे। अगर हमने मूव सेलेक्ट कर रखा है तो वहाँ जाके हम पेस्ट ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक फ़ाइल एक लोकेशन से कॉपी या मूव हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी फाइल। अगेन इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी फाइल और फोल्डर विल हैव टू सेलेक्ट दैट फाइल by right clicking on it. After that, what will happen? A shortcut menu will appear for you. From there, you will have to select what delete option. When you will press on the delete option, a message box will appear on the screen asking for the confirmation of deletion. And while clicking yes to confirm, what you will find that particular file or folder has been deleted from your computer. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाउ टू सर्च अ फाइल और फोल्डर। अगर हमें अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल और फोल्डर को सर्च करना है तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके लेफ़्ट पेन साइड में सर्च बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। उस सर्च बॉक्स में आप अपनी फ़ाइल या फोल्डर का नेम लिखेंगे। जैसे आप नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, इधर आपने हाफ नेम लिखा है तो आपके सामने उस पर्टिकुलर नेम से रिलेटेड सारी फाइल्स और फोल्डर्स आपके सामने अपीयर हो जाएगी।
आफ्टर दैट जब आपके सामने जितनी भी फाइल्स अपीयर होगी, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू सेलेक्ट the desired file or folder, and what will do, it will open that particular file or folder into a new window. And if you find the file that you want, then the next step is what, you will have to double click on it to open it. Last topic of today's session is sorting a file. Sorting means arranging a file in an ascending or in descending order. Sorting the desktop means arranging them in proper order. Window let you sort your file by name, by size, by date modify. And sorting help us in easy retrieval of data or any files. Here are some steps given below that how to sort a file. What you will have to do, you will have to right click on the desktop in a blank area. After that, a shortcut menu will appear. From there, you will have to point to the sort option by clicking on the name sum option. And what you will see, your all the icons are arranged in alphabetical order.